Yeah. Okay. This is your first session, second session. कौन सा है ये? आयुष second session. Okay, Shreya. Yeah, good afternoon, Vishal. Good afternoon, Yash. Sonali, good afternoon, beta. Yeah, so our kids, कैसा है? Concept थोड़ा बहुत revize किया, धनंजय, good afternoon, beta. Yeah, okay. Hi, Stuti. Good afternoon, Purvesh. Okay, good afternoon, all of you. बच्चे बहुत 1.5 घंटे चले जाएंगे. Voice is not clear. Voice is not clear. Okay, एक second. Mitansh, just hold on, beta. I'm just connecting it. Hold on. Yep. Now fine. Now it's clear. अभी clear है? या और आई थिंक फिर फैन मतलब हवा का आवाज भी नहीं आ रहा होगा. ओके, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, इट्स लो. अरे इट्स वेरी मच क्लियर. हो जाएगा. वो नेटवर्क इशू से कभी कभी होता है. ओके. या अनन्या, आई एम डूइंग दैट बेटा. बिट लाउड. या आई एम डूइंग दैट. ओके. टेल मी वन थिंग. हाँ, संजीवनी, वी विल डिस्कस विच बुक्स टू टेक. सेशन के एंड में हम ये डिस्कस करते हैं कौन सा बुक लेना है, क्या करना है. ओके, टेल मी वन थिंग. पहले सेशन में जो हमने किया था उसमें कोई डाउट है तुम्हें? फर्स्ट सेशन. ओके. मोल मोल समझ में आया? मोल समझ में आया? व्हाट इज मोल बाय द वे? व्हाट इज मोल? या Om, I'm revising beta. Don't worry, I'm revising. Okay. Purvesh. Okay. Sanika. Okay. Yeah. I'm revising it. So, हम लोगों ने no problem. There are many people that I know. That I know. It's okay. That I know. Relax. So, what we started last time was a chapter called Mole Concept. The second name for this chapter is Some Basic Concepts of Chemistry. Okay, some basic concepts of chemistry. So, mole ये होता क्या है word? So you must have heard about this word mole. Can anyone, whoever is attending for the first time, I want only them to reply. What is
what is mole, what exactly this term mole stands for. Okay, okay. Those who are attending for the first time today, I want them to answer. I want them to answer. Okay, 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 okay. That means that means when I want to express, yeah, Om, this is better word. Yeah, Om, very good. This is a better word. कि I want to express quantity. मुझे quantity express करना है, तो मैं mole word का help लेता हूँ. So how I related this word mole last time. Okay, how I related this word mole last time. Those who are attending for the first time, वो लोग ध्यान से सुने. मैंने last time I gave one word and people gave me the number. The word was dozen. So whenever we go to buy mangoes, we say 12 we don't say 12 mangoes or 24 mangoes or 36 mangoes or 48 mangoes. We don't talk about we don't talk about mangoes in this way. Okay. अथर्व, आइडियली जितने भी बायो वाले हैं, दोज हु आर नीट स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट, ओके, उन्होंने इनिशियल मैथ्स अटेंड करना जरूरी है. द रीजन इज योर फिजिक्स. आई मीन ऑफ कोर्स गौरव सर और आसिफ सर फिजिक्स और मैथ्स ऐसे करा देंगे कि दैट मतलब यू विल बी मास्टर इन दैट. बट सर का सेशन जरूर अटेंड करो, तुमको फिजिक्स में फायदा होगा. और इवन गौरव सर विल बी टेकिंग फिजिक्स फॉर यू, उसमें भी बेसिक मैथ सिखाएंगे, तो दोनों हेल्प होगा तुम्हारा. सो डोंट मिस इट. पीसीबी वाले जो भी हैं वो अटेंड करें. ठीक है, सीईटी के लिए सब पढ़ना है, पढ़ना सब है. सीईटी वाले हो जो भी कोई हो, अटेंड सेशन सारे करने हैं. ओके, कमिंग बैक टू द डिस्कशन. डजन, ये वर्ड एक्सप्रेस करता है क्वांटिटी. सो व्हेन आई से 1 dozen ऑफ मैंगोज, तो कितना 1 dozen मैंगो मतलब कितना हो गया. ओके, 1 dozen मैंगो मतलब कितना हो गया, 12. दोज हु आर न्यू ओनली दे आंसर. सो संजीवनी, पुट योर डाउट बेटा. सो व्हेन आई एक्सप्रेस क्वांटिटी, सो मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए भी द वे आई से मोल, sorry, dozen means 12, the same way. Okay, the same way. Sanjeevni, I'll answer that in the end beta. The way dozen मतलब मैंगोज की क्वांटिटी या एग्स की क्वांटिटी या किसी चीज की क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा है, वैसे ही मोल जो है, फिर से वैसे ही मोल जो है वो एटम की क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है. ऑल माय इंटेलिजेंट किड्स, 1 mole ऑफ एटम, ऑल इंटेलिजेंट किड्स, सुनना सभी ने है. जिन्होंने अटेंड किया है, फॉर देम इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन. डोंट मिस इट, डोंट मिस इट. So this will be 6.022 10 raised to 23 atoms. Okay, then 1 mole of molecule, any molecule, I am taking molecule, any molecule will be how much? Will be how much? ओके, पूर्वेश, आई डिडंट से बेटा कि मुझे वेट चाहिए. मैं तो 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 mole में. सो आई विल से 6.022 10 raised to 23 molecules. Okay, 10 raised to 23. चैतन्य, 10 raised to 23 बेटा. ओके, फाइन फाइन. नए बच्चे जितने भी हैं, आर दे एबल टू कोरिलेट? Are they able to correlate? Yes, yes, very good, very good. नए बच्चे जो हैं, are they able to correlate? Okay, yes, yes, yes. And you have done this, no problem. कभी क्या होता है, it's kind of revision, थोड़ा बहुत रिवाइज करना जरूरी होता है. Okay, let's say एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग 2 इंपॉर्टेंट यूनिट की बातें करेंगे. देयर इज थर्ड यूनिट ऑल्सो, ठीक है, लेकिन मैं 2 इंपॉर्टेंट यूनिट की पहले बात करूंगा. टू ऑल माई इंटेलिजेंट किड्स, there is one unit expressed where atomic mass is expressed in atomic mass unit, AMU, and in second case it is expressed in gram. Again, in first case it is atomic mass unit, in second case it is gram. Okay, so what is AMU? Come on, all new kids, come on, give a try kids, give a try. डरना नहीं है, रुकना नहीं है, give a try, give a try.
Come on. Yeah, Om, that's correct. Om, that's correct. Atomic mass unit, Sanika, that's correct. Atomic mass unit, Ananya, that's correct. That's correct. So, but जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, वेद, very good बेटा. You people are telling me full form of AMU. इसका मतलब मुझे I as a common man, मयूर, absolutely correct बेटा. I as a common man अगर मैं इसे समझना चाहूँ कि भाई मुझे एएमयू और ग्राम के बीच का डिफरेंस समझना है, क्षितिज करेक्ट, सो मैं कैसे समझू? यू आर गिविंग मी फुल फॉर्म, ऑल न्यू किड्स, यू आर गिविंग मी फुल फॉर्म. मुझे फुल फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे फुल फॉर्म नहीं चाहिए. ओके, सो एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट जो तुम बात कर रहे हो वो क्या होता है? सो एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट atomic mass unit is nothing but mass of single atom. Mass of one atom. तो चलो फिर से एक single atom का mass. Okay, and what is gram stands for? Gram stands for mass of 1 mole. Mass of 1 mole. Mass of 1 mole. Now all new students जिन्होंने पहली बार आज अटेम्प्ट किया है, I mean sorry, attending the lecture, can you ये दोनों point what I am giving you, are you able to understand kids? AMU is mass of one atom, whereas gram is mass of 1 mole of atom. Okay, okay, clear, everyone. So if I ask you, let's connect it like this. 1 mole of carbon atom will be how much? 12 ग्राम. 1 मोल मतलब कितने एटम्स होंगे बच्चों? कम ऑन, वेरी गुड. 6.022 10 raised to 23 atoms equal to 12 gram. Okay, 12 gram or 12 gram. All students, please keep your proper name. Okay, please rename yourself. I cannot get a student's name. किसी का नाम ऑडियो है, ऑडियो के नहीं होना चाहिए. So please keep a proper name. Okay, so I can basically understand कि who is giving the answer. Okay, अथर्व 12 ग्राम, ये तो इसका एटॉमिक मास होता है ना बेटा. ओके, 12 ग्राम इज एटॉमिक मास ना, कार्बन का एटॉमिक मास होता है. ठीक है, तो ग्राम जब हम यूनिट लिखते हैं ना अथर्व, मैंने ऐसे ही पहले लेक्चर में ही सवाल पूछा था. आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू एवरीवन दैट व्हाट इज the weight of one atom of carbon. Atharva, I am asking beta one single atom. Understand the point. So somebody giving me answer as 12 gram was really shocking. कि एक atom 12 gram. Okay, yeah, others are giving the answer. That's correct. So it is not 12 gram. अभी 12 ग्राम कैसे हो सकता है? इतना छोटा आटम जो मुझे दिख नहीं रहा है वो 12 ग्राम का है. You understood the point? नहीं, वो रॉन्ग है. मैंने लास्ट टाइम कैसे समझा था? टू ऑल माय इंटेलिजेंट न्यू स्टूडेंट, एक बैग में फिर से जो लोग ने अटेंड किया, प्लीज ट्राई टू अगेन कोरिलेट. इट्स नथिंग harm in revising it. Okay, try to correlate. So in a bag, if I keep 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon, everybody, in a bag, if I keep this many matlab how many? 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon. 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon. तो उस बैग को क्या कहूंगा मैं? अमर, उस बैग को क्या कहूंगा मैं? I'm going to call that bag as 1 mole. और उस बैग का वजन अथर्व, उस बैग का वजन
Shravan is not getting, I mean, Om, who is Shravan? Can you just help me? Okay. यानी यानी मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, स्लोली. ओम, धीरे धीरे समझेगा बेटा. व्हाट हैपेंस, यू नो, टॉपिक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इट्स 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है. ओके, सो वो 10th स्टैंडर्ड रादर, ऐसे बोलो तो आईसीएससी में मोल कंसेप्ट स्टोइशियोमेट्री 9th में भी था और 10th में भी था. सो वी आर डूइंग दैट पार्ट. समझेगा. फॉर एवरीथिंग थोड़ा सा पेशेंस रखो. यू विल अंडरस्टैंड. डोंट वरी, डोंट वरी. आई एम सेइंग, एक मोल, ये वर्ड क्या होता है? व्हाट इज दिस वर्ड मोल? सो श्रवण, श्रवण, यू कैन हियर मी? श्रवण, ओके, श्रवण कैन हियर मी. एक मोल, व्हेन आई से डजन, द वे इट सेज 12 मैंगोज, 12 क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा है. ओके, वैसे ही मोल कुछ तो क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है. व्हाट इज दैट क्वांटिटी? कम ऑन, थिंक थिंक थिंक. ओके, थिंक. इतने सारे एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उनको हम कहते हैं 1 मोल. पीपल अंडरस्टूड? इतने सारे एटम्स. सी, फॉर मी, आई वांट टू मेक माय कैलकुलेशन वाला लाइफ बिट इजी. I cannot keep writing this number every time. So what I do, the way मैं हमेशा मैंगो वाले को ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई मुझे 36 मैंगो का भाव बताओ कितना होगा, 48, 96 मैंगो का. I'm going to talk in terms of dozen. So for him it's very simple to say कि भाई 200 rupees dozen. 12 mangoes will be 200 rupees. So calculation easy हुआ. So मोल क्या है? What is this मोल term? मोल कहता है कि इतने सारे एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो पूरे एटम्स को हम क्या कहते हैं? 1 मोल. 1 डजन इज 12. या सिमरन, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. सो मॉलिक्यूल हुआ तो इतना. अब जब हम एटॉमिक मास लिखते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, जो हम पीरियोडिक टेबल में 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, एंड वी डोंट नो. साक्षी, आई एम कमिंग टू दैट. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब जो तुम एटॉमिक मास लिखते थे ना स्कूल में, लेट्स से कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, ये जो तुम लिखते थे ना, वो ग्राम था. ग्राम मतलब क्या? क्या वो एक एटम का मास हो सकता है ग्राम में? थिंक थिंक थिंक. एटम इतना छोटा वैल्यू है. नो नो, एक एटम का मास नहीं हो सकता. सी, रिगार्डिंग कैलकुलेशन, जो हम पूरा का पूरा एटम मोल्स में, मतलब हम कैलकुलेशन एटम्स की लैंग्वेज में नहीं करने वाले, हम कैलकुलेशन अब मोल्स की लैंग्वेज में करने वाले. दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दैट प्लेटफॉर्म कि व्हेन आई राइट 12 ग्राम, इट इज नॉट सिंगल एटम. Yeah, Isha, that's correct, beta. Either you write AMU or you write U or you write delta. So, 1 carbon atom, if this many atoms are 12 gram, if this many atoms are 12 gram, if this many atom, matlab 1 mole is 12 gram, okay? Yeah, Sanika, we are coming to that. Okay, so similarly, इतने सारे atoms मिलके अगर weight 12 ग्राम है, तो किसी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन बताया कि देयरफॉर एक एटम का वेट कितना होगा? लेट्स कॉल इट एज एक्स. अनीशा, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अगर मैं इसको यहां पर लिखूं, देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम x will be equal to how much? 12 gram upon Avogadro's number. Did you do the cross multiplication? या बच्चा लोग एक समझ लो, ये टॉपिक 11th
में डिफिकल्ट जोन में है. सो दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग फ्रॉम 8, 9, 10 स्टैंडर्ड. ये चैप्टर डिफिकल्ट है, नो डाउट. आगे चलोगे तो चैप्टर को कंफर्टेबल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए एक ही रास्ता है. कीप योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अपना वीकनेस पहचानो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एक एक क्विक इसमें सर ने बता दिया और तुरंत आ गया, ऐसा नहीं होगा बच्चों. आई हैव टू कीप रिवाइजिंग, यू हैव टू कीप लिसनिंग, कीप एब्जॉर्बिंग. सो पेशेंस के साथ करो. इतने सारे एटम्स अगर 12 ग्राम के हैं तो एक एटम कितना? अथर्व, वी आर डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, सो एक एटम कितना? वैष्णव, मैंने कार्बन लिया है इसलिए 12 ग्राम आई हैव टेकन. इफ आई टेक ऑक्सीजन, मुझे यहाँ का वेट चेंज करना पड़ेगा. ये एटॉमिक मास है ना. एटॉमिक मास जो हम लोग लिखते हैं उसका यूनिट अगर हम ग्राम में लिख रहे हैं तो इतने सारे एटम्स मिलके ग्राम में करेंगे 12 ग्राम. इतने सारे एटम्स मिलके 12 ग्राम करेंगे. ओके श्रेयस, करेक्ट करेक्ट. सो व्हाट इफ आई डिवाइड, डोंट यूज दैट 12 नंबर. ओके, ये 12 वाले को यूज मत करो, जस्ट डिवाइड 1 बाय एवोगैड्रो. सो किड्स फ्रॉम लास्ट क्लास मुझे बता सकते हो कितना आएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आया था 12 इंटू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम. या भूषण, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इसे हम लोग क्या लिखते हैं? This we call it as, that's correct. समझा how I did the calculation? Yeah, Om, I'll teach you the easy way also. ये पहले ये तो समझ लो कि if I'm saying 12 mangoes are going to cost 240 rupees. Okay, what is the cost of one mango? फिर से 12 mangoes are going to cost 240 rupees. What is the cost of one mango? इजी. मतलब इतने सारे एटम्स मिलके अगर 12 ग्राम है तो एक एटम कितना? ओके या रोहन, फिर से 12 ग्राम कितने एटम्स का? यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. रोहन, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू दिस एंड दिस. तो ये क्या हो जाएगा? आई जस्ट, रोहन, फॉर यू आई जस्ट डू इट. तो ये हो जाएगा x इंटू 6.022 10⁻23 is 12 gram into 1. Rohan, clear? So I'll write therefore x is equal to 12 into 1 upon 6.022 10⁻23 gram. Rohan, if you solve this bracket, Rohan, you understood how I cross multiplied, beta? Rohan, others, everyone understood? 1 upon Avogadro, इसको अगर डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करोगे तो यू गेट द आंसर 1.66 10⁻⁻24 ग्राम. अगेन, क्या हम इतना बड़ा नंबर लिखते रहेंगे बार बार? डू वी हैव दैट मच टाइम? डू वी हैव दैट मच टाइम? या अथर्व, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. दैट्स व्हाई ये 12 1 AMU इज दिस वैल्यू, तो इसको मैं लिखूंगा AMU. ठीक है, ठीक है एवरीवन. 12 AMU मतलब मास ऑफ वन एटम. हाँ या ना? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम. फाइन फाइन. रोहन अंडरस्टूड बेटा? मास ऑफ वन एटम. ओके, नो दीपाली, रिलैक्स. कैलकुलेशन तुमको समझेगा, कैलकुलेशन समझेगा. ओके, नाउ डोंट एज्यूम इट. मैं आगे चैप्टर डिफिकल्ट ना लगे, दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग. आगे चैप्टर किड्स जनरली डू मिस्टेक्स हियर. ओके, सो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इरेज करता हूं. ओके, आई गिव यू वन कैलकुलेशन अगेन. टेल मी मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम. वन ऑक्सीजन एटम. Okay,
So I know the value as 16 grams. All kids, all kids. Yeah, relax, relax. One sec. All kids, tell me 16 gram, 16 gram लिखा है मैंने, gram. Is it mass of one atom or it is mass of 1 mole of oxygen atom? Mass of 1 mole, yeah, 1 mole. O2, O2 is molecule, बच्चा. O2 is Deepali. Fine, beta. Deepali, fine. 6.1 मोल का वेट 16 ग्राम है, 1 मोल. तो दीपाली, आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको डिफिकल्ट लगा. वेरी गुड. टेल मी वन थिंग कि 16 ग्राम, इफ यू डोंट माइंड, can I say it is 6.022 into 10 raised to 23 atoms of oxygen? इतना लिखूं चलेगा? ये लिखूं चलेगा? एवरीवन, एवरीवन. ओम, ओम. ओके, वेरी गुड ओम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तिशा, तिशा, आई अंडरस्टूड बेटा. मैं सिर्फ और एक क्या एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑडियो प्लीज रीनेम योर सेल्फ. ऑडियो 813 whatever is the number. Okay. Sridhar, Sridhar, you have any doubt beta? Sridhar. Okay, this many atoms of oxygen is 16 gram. Okay, this many atoms of oxygen. Dipali, if I want one atom of oxygen, let's say it is X. Rohan, can you cross multiply beta? Rohan, Vishal, very good beta. Sridhar, why you have raised your hand? Sridhar, you have any doubt? Kshitij, yeah, very good, Rishikesh, very good, very good. क्या बात है? Rohan, can you cross multiply beta? Om, very good. Om, very good, very good, very good, very good. Sneha, very good, very good, very good. यानी ये हो जाएगा x is equal to 16 gram upon 6.022 10 raised to 23, which will become 16 into 1.66 10 raised to minus 24 gram, which will be equal to 16 AMU. Akash, very good, very good, very good. Om, understood. Rohan, understood beta. Om, understood. Deepali, understood beta. Okay, understood. Okay, 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 okay. Fine, fine. बच्चा लोग सिर्फ होल्ड करना, मैं इसको टॉपिक पकड़ के रखना, टेंशन नहीं लेना. I'll make each and every topic एकदम मस्कार, so relax. Okay, so can you tell me mass of one nitrogen atom will be how much? Anybody? Mass of one nitrogen atom. Om, Rohan, Dipali, everyone. Unit के साथ. Okay. One atom of nitrogen. One atom. Dhananjay correct. Riddhi correct. Very good. Gayatri correct. Very good. Very good. Anisha correct. Akash correct. I want all new students to answer. All new students to answer. One atom of nitrogen is 14 AMU. Is this correct kids? समझा सभी को? समझा सभी को? AMU और ग्राम के बीच का डिफरेंस समझा? I want everyone to speak up. Come on kids. अपना वीकनेस, अपना ऐसा कुछ नहीं करना है कि नहीं मैं बोलूं या नहीं बोलूं. It's very easy. लेकिन कैसा होता है? It's like a cough syrup. भाई ऊपर से कड़वा लगेगा लेकिन अंदर जाके तुमको पूरा ठीक करेगा. So relax, relax. Okay. Come on. Everybody. Yeah, very good. Yeah. Om, your friend understood. Shravan. Okay. Sanjeevni, very good. Priyank, क्या डाउट है बेटा?
Priyank? Priyank? Okay. Pramay, correct. Yeah. No. It means 1.66. 1 AMU is तुमने वैल्यू थोड़ा सा चैतन्य वी कैन अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स बेटा. इट्स जस्ट अ यूनिटरी मेथड. व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, इट्स यूनिटरी मेथड. हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेल रहे हैं. ये जस्ट प्लेइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और अलग कुछ नहीं कर रहा हूं मैं. देवेश, mass of one atom of oxygen is 16 AMU. ओके अभी ये 1.66 कहां से आया? तो जब मैं ऐसे बोलूं मास ऑफ वन एटम, ओम तुमने पूछा कि सर इसमें एकदम सिंपल मेथड क्या हो सकता है, तो आई एम गिविंग यू अ जनरल फॉर्मूला. समबडी, आई थिंक ओम ओनली आस्क्ड या और किसी ने, कि इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है. ओके सो दिस विल बी atomic mass अपॉन एवोगाड्रो नंबर. अब ये कितने लोगों को ये फॉर्मूला नहीं समझा? मैंने ऑक्सीजन का कार्बन का एटॉमिक मास निकाला, कार्बन का एटॉमिक मास निकाला. एटॉमिक मास मतलब ये 1 मोल वाले का मास, मतलब इसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे. ओके ओके. सो एवोगाड्रो नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर इज दिस. इसको हम लोग लिखते हैं Na एटम्स. Na एटम्स मतलब एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर मतलब कितना? 6.022 10⁻23. हाँ धनंजय, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में क्या फर्क है, ये हम ऑफ कोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में तो एकदम ही डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं. एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. धनंजय नोट कर लो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आजू बाजू रहते हैं वो एटॉमिक नंबर. सो इफ आई राइट कार्बन एज 6 and mass as 12, so what does Priyank, 1 second beta. So atomic number, this indicates उस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ओके ओके ओके. and 12 indicates number of proton plus neutron. धनंजय क्लियर? धनंजय क्लियर बेटा? हाँ, वी कॉल इट एज एटॉमिक मास नंबर. इसे कहते हैं एटॉमिक मास नंबर. तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. अभी के लिए हम इतना ही ध्यान में रखेंगे, लेकिन तुमको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा ना, ओके या इशिता, ऑफ कोर्स एक लेफ्ट और राइट मतलब आइडियली ऐसे मेंशन करना चाहिए, बट हम जब रिएक्शंस लिखते हैं या हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम इन छोटी सी बात को ध्यान में नहीं रखते. ऋषिकेश, एटॉमिक मास को ही हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं. ओके फिर से, this many grams is equal to 1 AMU. फिर से, this many grams equal to 1 AMU. this many grams equal to 1 AMU. ओके क्या ये फॉर्मूला सभी लोग कंफर्टेबल हो गए? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? किसी को भी डाउट हो प्लीज आस्क. ओके ऋतुजा, व्हाट which chapter बेटा? what are you which chapter you are asking about? those who are new kids, क्या वो लोग फॉर्मूले से कंफर्टेबल है? अभी मैंने जब कार्बन का निकाला था तो उधर लिखा था 12 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो. ओके 12 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो. देन ऑक्सीजन का लिखा था, ओके बाय व्हाट वी हैव रिटन,
16 ग्राम अपॉन एवोगाड्रो. ओके, आई विल राइट इट अगेन. कार्बन का मैंने जब एटॉमिक मास निकाला था तो मुझे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब रोहन ने मुझसे पूछा कि सर ये मेरे को थोड़ा सा डाउट है मल्टीप्लीकेशन कैसे आया, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा था. ओके, 1 अपॉन एवोगाड्रो जो है उसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24. आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग दिस नंबर? इतना बड़ा नंबर बार बार लिखने में इंटरेस्टेड हो? नो. यस, वेरी गुड बेटा. तो हम लोग इसे लिखेंगे 12 AMU. नाउ आई वांट एवरीवन टू आंसर. ऑल न्यू किड्स. Yeah, I'll be telling you which books to buy. Can you tell me AMU को ग्राम में करना है तो सभी यात्री ध्यान दें. Every student pay attention. AMU को ग्राम में लिखना है तो 12 AMU को कैसे लिखूंगा ग्राम में? Come on, answer is there on the board. Come on. 12 into 1.66 into 10⁻⁻24. अरे नहीं, अरे you people misunderstood me. मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है, बराबर. ओके, मास ऑफ वन एटम इज 12 ग्राम. ओके, उस सॉरी AMU, आई एम गिविंग रॉन्ग आंसर. मास ऑफ वन एटम इज 12 AMU, करेक्ट. उनको आंसर उन्होंने क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो यू सेड 12 AMU. You immediately got the answer as 12 AMU. But in the options, they have given all the answers in the form of gram. So AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 12 AMU, 12 into 1.66 10⁻⁻24. ऋषिकेश -24 बेटा, नॉट -23. ऋषिकेश -24. ओके, मैं रिवर्स ऑर्डर में जाने की कोशिश कर रहा हूं. आइसोटोप्स, एटॉमिक मास जब ऐसा आ रहा है तो आइसोटोप्स होता है एवरेज एटॉमिक मास. ओके, 1 AMU इज दिस मेनी ग्राम, यानी मुझे 12 AMU को मैं 12 इंटू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम लिख सकता हूं. ओके, लेकिन अगर उन्होंने ऑप्शन में एवोगाड्रो के टर्म्स में लिखने को कहा होगा तो आई कैन राइट इट एज 12 इंटू 1 अपॉन एवोगाड्रो ग्राम. 12 into 1 upon Avogadro gram. Now I want people to answer. Everyone. Tell me one atom का मास, ऑक्सीजन एटम का मास. यस, फिलहाल 20 एटॉमिक नंबर 20 तक याद रखो, उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर. ओके, now listen everybody, relax. We'll go slow but we'll practice hard. एकदम परफेक्ट करके आगे जाएंगे. Yeah, it can be written as Ananya. It can be written as 12 upon Na. How to take out mass? अरे एटॉमिक मास तो पता होना चाहिए ना बेटा. एटॉमिक नंबर जिनका होता है उनका जनरली डबल उनका एटॉमिक मास होता है. ओके, नाउ टेल मी. ओम करेक्ट. मैं ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूँ. ओम मैं ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा. एक ऑक्सीजन एटम के मास को, एक ऑक्सीजन एटम, उसको अगर मुझे एवोगाड्रो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, एक ऑक्सीजन एटम के मास को एवोगाड्रो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, तो कैसे करूंगा? एवोगाड्रो मतलब 6.02. या यहां लिखा है 12 अपॉन एवोगाड्रो, उसकी जगह लिखूंगा 16 अपॉन एवोगाड्रो. 1 अपॉन एवोगाड्रो कितना होता है? 1 अपॉन एवोगाड्रो कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24. और इसको मैं कौन से फॉर्म में लिख सकता हूं? AMU के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में लिख सकता हूं? AMU के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में लिख सकता हूं? AMU के फॉर्म में. इज दैट क्लियर? ओके बच्चा लोग. या कम ऑन एवरीवन. एक कैल्शियम एटम का वेट कितना है? एक कैल्शियम एटम, one calcium atom 40 AMU.
40 AMU, यानी AMU जैसे ही मैंने देखा कि भाई साहब इसका यूनिट AMU लिखा है, AMU लिखा है, AMU लिखा है, मतलब व्हाट थिंग्स शुड कम इन माय माइंड, what should come in my head कि AMU बोल रहा है मतलब क्या है? When I say AMU, it is mass of one atom. Okay, when it is AMU, it is mass of one atom. Very good. जिनका भी आज फर्स्ट सेशन है बच्चा लोग, come on, hold it tight, come on. अपने को पूरा कंसेप्ट एकदम परफेक्ट दिमाग में बिठाना है. तो AMU is what? AMU is what? AMU is what? Very good Sanjeevni, very good Anvay. Come on. AMU is what? One atom का मास. AMU is what? One atom का मास. अगर ग्राम लिखा होगा, ग्राम लिखा होगा तो क्या? ग्राम लिखा होगा तो क्या? ग्राम लिखा होगा तो क्या? कम ऑन, रुकना नहीं है, डरना नहीं है. कम ऑन, बिंदास आंसर दो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रॉन्ग होगा ना, कोई बात नहीं. वी आर लर्निंग. मास ऑफ 1 मोल. वेरी गुड. मास ऑफ 1 मोल. मतलब मैं जैसे ही एग्जाम में यूनिट देखा मैंने AMU, ओ आई शुड से कि अरे ये एलिमेंट तो अकेला खड़ा है, बिकॉज उसका यूनिट लिखा है AMU. प्रणव या एग्जाम में जैसे ही उन्होंने कहा एग्जाम में Fe आयरन 56 AMU, तो मैं बोलूंगा अरे इधर तो आयरन अकेला खड़ा है, अकेला एटम है. तो लोग पूछेंगे अरे तुमको कैसे पता चला अकेला खड़ा है? बिकॉज मैं बोलूंगा अरे उधर देखो उसका यूनिट AMU है. AMU मतलब एक एटम का मास. ओके, अगर कहीं पर लिखा होगा 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब कितने मैग्नीशियम एटम्स खड़े हैं? 24 ग्राम बोला मतलब कितने एटम्स खड़े हैं? 1 मोल. ग्राम मोल. AMU एटम. ग्राम मोल. AMU एटम. क्लियर बच्चा लोग? ऑल न्यू किड्स. क्लियर हुआ बच्चा लोग? एवरीवन, रुकना नहीं है. ऑल न्यू किड्स. AMU और ग्राम के बीच का डिफरेंस समझा? एवरीवन. आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर. 8-10 कमेंट से कुछ नहीं होगा. आई वॉन्ट एवरी. ओके. जो लोग लास्ट सेशन अटेंड किए थे, डिड वी डू एनी फॉर्मूला? हाँ, प्रयाग, I'll tell you, I'll explain it again. Okay, what is the formula? What is the concept? Whenever you see AMU, no, Chaitanya, not that. RAM, AM, GM. When you see AMU as a unit, प्रयाग, when you see AMU as a unit बेटा, तो समझ जाना कि इट इज एक सिंगल एटम खड़ा है. सिंगल एटम जो हमें दिखता नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना बहुत छोटा होता है. ओके, सिंगल एटम. ओके, सो उस एटम का मास होगा. और जब ग्राम लिखा होगा प्रयाग, जब ग्राम लिखा होगा, ओके, या अद्वैत, दैट्स फाइन बेटा. जब ग्राम लिखा होगा प्रयाग, मतलब क्या बोलने का बेटा कि उधर 6.022 इंटू 10⁻23 ओके, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का है. अनिकांत, व्हाट इज द डाउट बेटा? अनिकांत, क्लियर? अनिकांत, atomic mass unit. 1 AMU is atomic mass upon mass of one atom is atomic mass upon Avogadro number. Everyone, mass of one atom is equal to atomic mass upon Avogadro number. लिख लो, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, सबने मिलके लड़ना है. एक एटम का mass of one atom is how much? Come on kids, चौका मारो. 4, boundary, 6, come on, goal. Mass of one atom. What is the formula? I know the unit. Come on, formula. Come on. Atomic mass expressed in gram. Gram मतलब एक मोल का mass divided by Avogadro. Atomic mass, not atomic number. Atomic mass upon Avogadro. All new kids, all new fresh intelligent brains. समझ में आया सभी को बच्चा लोग? Everybody understood? प्रयाग समझा बेटा? प्रयाग अंडरस्टूड बेटा? प्रयाग अंडरस्टूड बेटा? प्रयाग अंडरस्टूड? या ग्रेट प्रयाग, वेरी गुड. बाकी लोग तो एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे. वेरी गुड. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अब मैं तुमको पहला बेसिक फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ. ओके,
एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर. एटॉमिक मास अपॉन जानवी, ग्रेट जॉब बेटा. ओके, एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये कर लिया, ये पहला फॉर्मूला. ओके, मोल को वी डिनोट बाय फॉर्मूला, sorry, mole we denote by symbol small n. Avogadro number we denote by symbol Na. Okay, yeah, pay attention. Now I'll be teaching you 4 formulas, बच्चों. Now these 4 formulas are so important कि ये हमारे पूरे चैप्टर में भी यूज होने वाले हैं और केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस में यूज होने वाले हैं. मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो ज्यादातर यूज होते हैं. Okay, yeah, Siddesh, that is one formula. Did we do that formula, Siddesh? हमने किया था बेटा ये वाला फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. अदनान, यू वांट टू से समथिंग बेटा? अदनान, या. सो टू ऑल न्यू किड्स, जब मुझे मोल कैलकुलेट करना है, प्लीज हेल्प मी विद दिस वन. इफ 12 मैंगोज correspond to 1 dozen. All dear students, pay attention. 12 mangoes मतलब 1 dozen. So 96 mangoes is equal to n dozen. 12 mangoes means 1 dozen. So 96 mangoes is how many dozen? Correct, absolutely correct. 12 dozen equal to 1 mango. Sorry, 12 mangoes equal to 1 dozen. फिर से 12 mangoes equal to 1 dozen. So 108 mangoes is equal to how many dozen? See, orally you are doing. I mean, this is cross multiplication, kids. Unitary method. Yes or no? Are you able to? I mean, can you just imagine ये question कितना easy है? कितना easy है? Yes. मैं तुमको जब डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जो आईआईटी में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन जो नीट में आ चुका है, द वे यू आर गिविंग मी आंसर नाउ ना, वहां भी यू विल बी इजीली एबल टू रिकलेक्ट कि अच्छा मैंने इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. दैट्स व्हाई मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यूनिटरी मेथड से सॉल्व होता है. तो चैप्टर लेंदी डिफिकल्ट कब हो जाता है? जब हमारा बेसिक्स थोड़ा वीक हो. So we are working on our basics. So let's make it ekdam solid, strong ekdam. Now, if I say first formula I am doing, if I say, pay attention, that 1 mole of carbon is 12 gram. That means if we have 12 gram of carbon, that corresponds to 1 mole of carbon. Is this okay? Is this information correct? People understood? मैंने ग्राम लिखा है बच्चों, ग्राम. विशाखा, any doubt बेटा? विशाखा, any doubt बेटा? Yeah, this is fine. This is fine. Okay, correct. यानी मैं अगर मोल कह रहा हूं, ओके ओके, तो उसका 12 ग्राम होगा. ओके, उसका 12 ग्राम होगा. तो अगर मैं तुमको 144 ग्राम ऑफ कार्बन देता हूं, तो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ मोल्स? It will be great if you can cross multiply and give me the answer. Rohan, can you cross multiply beta? Rohan, you are there boy? Rohan. So इसको cross multiply किया तो क्या आएगा? N will be equal to 144 gram upon 12 gram. Yeah, you can, of course, you can cross multiply, cancel कर सकते हो उसको. That's not at all an issue. You can cancel it. Fine, absolutely fine. Everybody understood?
Everybody understood? Come on, kids. Come on. Siddesh, you want to say something, beta? Hi, Siddesh. सिद्धेश, उनको हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो एएमयू सिंगल एटम के उसमें दिए रहते हैं, लेकिन कई कई जगह एएमयू के टर्म में मेंशन किए रहते हैं. ओके ओके, एएमयू के टर्म, बट दे स्पेसिफाई सम ऑफ द टेबल. तुम कौन सा रिफर कर रहे हो उसमें, बिकॉज दे मेंशन समटाइम इन ग्राम्स ऑल्सो, और वो वहां हाईलाइट करते हैं कि 1 मोल. ओके, नहीं तो इट इज एएमयू. देवेश, 1 ग्राम, अभी ऐसे करो देवेश, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन इजी कर देता हूं. ओके, कितना 1 AMU is 1.66 into 10 raised to minus 24 gram. Therefore 1 gram is x AMU. Devesh, can you cross multiply beta? Devesh can you cross multiply? You understood Devesh? Cross multiply करना है बेटा. Yeah, simply cross multiply. बच्चा लोग, somebody asked me here कि सर आपको 144 कैसे आया. अच्छा, तुमको पसंद नहीं आया ये नंबर, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ. Can I make 24? Can I make 24? Yes or no? Can I make 24? Okay. किसी ने मुझसे पूछा सर आपको 24 कैसे आया. अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Can I make 96 gram? What? Why I am changing only this one? इसका मतलब this can be any random number. This can be any random number. Clear हुआ? Clear हुआ? Clear हुआ? It can be any random number. Is that clear? Is that clear? Yeah, yeah. So I'll again put it as 144 gram. This can be any random number. I told you na. See, I cannot change this one. मैं ये कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकता बच्चों, ये फिक्स है, फिक्स है. Come on, help me with this one. Second example. How many moles will be in 64 gram of oxygen atom? Now wait, don't do the calculation, relax. I as a student, मेरे सामने ये क्वेश्चन आया कि कितने मोल्स आंसर भी देना शुरू. Okay, how many moles are present in 64 gram of oxygen atom? Correct, correct. Now 64 is just a random number. Question है वो, they can ask any different value, any different value. So मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है. therefore 64 ग्राम मतलब n मोल्स. कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई? सो n का वैल्यू आएगा 64 ग्राम अपॉन 16 ग्राम. कैन एनीबडी टेल मी, इधर डिनोमिनेटर में ये 12 ग्राम क्या है, इधर डिनोमिनेटर में 16 ग्राम क्या है? मुग्धा एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. या वैष्णव करेक्ट, अदनान करेक्ट. एटॉमिक नंबर, सिद्धि, एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक मास, वेरी गुड. या हाँ, व्हाट इफ नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, दैट्स फाइन. अरे मैं तो ये तुम्हारे कंफर्ट के लिए आई वाज गिविंग यू नंबर सो दैट वो ओरली सॉल्व हो जाए. आई कैन गिव यू 59 ऑल्सो हियर. अप टू मी, आई एम द एग्जामिनर. मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे सकता हूँ. यानी इन दोनों फॉर्मूले को देख के कैन आई डिराइव द फर्स्ट फॉर्मूला? इन दोनों फॉर्मूले को देख के कैन आई डिराइव द फर्स्ट फॉर्मूला कि n मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बच्चों लोग, लुक एट द फॉर्मूला. घाई मत करो. तुमको नहीं समझा हो ना,
प्लीज आस्क मी किड्स, बिलीव मी, आई नो कि वो वहां सिलेबस क्या है. सो यहाँ पर या दैट्स फाइन. अरे तुम यहाँ पे वेट और मास का प्रॉपर इसमें मत जाओ, बिकॉज मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल मास लेके वैल्यू लेके चल रहा हूँ जो कि चेंज नहीं होगा. तो इसको मैं अगर गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास लिखूंगा या ऐसे, तो परेशान नहीं होना है कोई भी. मैं इसमें वेट और मास के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं करना है. आई एम एज्यूमिंग वो तुम्हें पता होगा. सो आई एम हैविंग अ लिबर्टी टू यूज द टर्म वेट एंड मास. ठीक है. सो मास, एटॉमिक मास मेंशन करो, वेट मेंशन करो. आई एम कीपिंग इट इंटैक्ट ओनली. मास विच इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके. coming back to the discussion. Okay. अनिकांत, गुड क्वेश्चन बेटा. अगर हमें एटॉमिक मास नहीं पता है देन वी आर इन ट्रबल. आई थिंक मतलब तुम्हें ये छोटा सा मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ बेटा. जनरली वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं देते एग्जाम में, बट गिवन डेटा, ओके, गिवन डेटा में दे मेंशन अबाउट एटॉमिक मास. तो अभी वो लोग लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं देंगे, CO2 के बारे में नहीं देंगे. ओके. बट वो लोग बोलेंगे कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 ग्राम. ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है. लेकिन मुझे एटम्स का मास चाहिए या इनका कलेक्टिव मॉलिक्यूल का मास चाहिए? Molecule. So I'll say carbon plus 2 oxygen, which will be 12 plus 2 into 16, which will be equal to 44 ग्राम. किसी ने अभी मुझसे पूछा था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है. ओके. सो यहाँ पर हम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल ऑफ एटम का मास, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल, so it becomes 44 ग्राम. इट बिकम्स 44 ग्राम. अच्छा, अभी तुमको पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एटॉमिक मास दिए हुए हैं जहां पर वैल्यू लेट से ऐसा लिखा होगा कि 1.008 ग्राम. ऐसा लेट से उन्होंने ग्राम में मेंशन किया है 1.008 ग्राम. तो तुम जब कैलकुलेशन करोगे ना बच्चों, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या श्रद्धा करेक्ट, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं. we cannot keep wasting our time doing the exact calculation. ठीक है. अथर्व वेट, आई मीन इफ यू वांट यू कैन राइट दिस फॉर्मूला. हाँ, ये फॉर्मूला सभी लिखो. सो अगर अगर तुमको 1.008 दिया है ना, तो डोंट यूज 1.008 इन डूइंग द कैलकुलेशन, because it will be unnecessary time consuming, and we have only 60 seconds to solve the question. So we cannot waste most of it in doing the just doing the calculation part and not concluding the answer. ये नहीं करना है. इसलिए 1.008 या ऐसा कुछ दिया होगा तो we take a number which is फटाफट हो जाए. ठीक है. सो अगर किसी एलिमेंट का लिखा है समथिंग 0.0 whatever, so try to take a number which is, क्योंकि अपने को ऑप्शन इसलिए तो दिया है, ABCD इसलिए तो दिया है, ऑप्शन दिया है. तो द मोमेंट यू कम क्लोज टू एनी ऑप्शन, यू नो कि अच्छा यही मेरा आंसर है, लेट्स मार्क एंड एंजॉय. बोर्ड में यही प्रॉब्लम होता है ना. बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, दे वांट एग्जैक्ट नंबर, दे डोंट गिव यू ऑप्शन. ओके. एक थ्योरी क्वेश्चन होगा तो दे एक्सपेक्ट एन आंसर which is written properly. So their calculation also should be 100% fine. Clear? Any confusion? Everybody clear? यहां तक पहला लेवल क्लियर हुआ बच्चों? पहला लेवल क्लियर हुआ. अब मैं दूसरे फॉर्मूले पे चल रहा हूं. Tell me the difference between, anybody, what is the difference between atomic mass and molecular mass? What is the difference between atomic mass and molecular mass? तिशा, एटॉमिक मास का डेटा दिया होता है बेटा, गिवन डेटा, लेकिन हम 2 साल के पीरियड में हम इतने सारे एलिमेंट्स करेंगे ना कि हमें उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों याद हो जाता है. ओके. या
ओके, इवन ये मैं बता देता हूं, अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो इवन मॉलिक्यूलर मास जिसे हम मोलार मास कहते हैं उसे भी हम एएमयू और ग्राम में लिखते हैं। ओके, सभी लोग लेट मी हेल्प यू विद द इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, ठीक है, ठीक है, या सो मैं इसे लिखूंगा 44 एएमयू और इधर लिखूंगा 44 ग्राम। बच्चा लोग पे अटेंशन, डोंट राइट, होल्ड ऑन, डोंट राइट, होल्ड ऑन, पहले मेरा पॉइंट सुन लो। 44 एएमयू मुझे कह रहा है कि इधर वन, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। या अनीशा, अनीशा, मैं इसको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, रुको रुको, मैं सब धीरे धीरे सिखाऊंगा, पहले मॉलिक्यूल तो समझ लो क्या है। ओके, दोनों, दिस इज नॉट द सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास से डील करने वाला हूं ना, इसलिए मैं तुमको ये समझा रहा हूँ। व्हाट इफ इट इज रिटन 44 ग्राम? इट इज मास ऑफ, मतलब कितना होगा, 6.022 10⁻23। इज दिस ओके किड्स? बच्चे लोग एएमयू और इसके बीच का डिफरेंस समझा, इसके बीच का डिफरेंस समझा, एएमयू और इसके बीच का डिफरेंस समझा? या संजीवनी, आई अगेन रिपीट बेटा, वी आर डूइंग सेम थिंग। एएमयू मतलब क्या, एक एटम था ना, अब मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे तो एएमयू मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल खड़ा है, एक सिंगल CO2 खड़ा है। ओके, वन सिंगल CO2 इज देयर। ओके, सिंगल CO2 इज देयर। व्हेन आई राइट 44 ग्राम, इस चीज का मतलब क्या? व्हेन आई राइट 44 ग्राम, इस चीज का मतलब क्या? व्हेन आई राइट 44 ग्राम, व्हाट डज दिस मीन? Come on, everyone. When I say 44 gram, it's mass of 1 mole of whatever, whichever molecule it is. Okay, mass of 1 mole of CO2. It's mass of 1 mole of uh, molecule. Okay, सभी ने ये पहला फॉर्मूला नोट कर लिया है, ये लिखना था, ये लिखना था। ओके, व्हाट इज मोल इन मॉलिक्यूल? ओम, इट इज द सेम थिंग बेटा। पहले एक बैग में मैंने एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स भर के रखे थे, एटम्स, तो वो 1 मोल ऑफ एटम था। अब वैसे ही बैग में अगर मैंने एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भरा तो व्हाट इफ आई फिल एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देन? चैतन्य, ये वाला मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मोल कैलकुलेट करने का। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन किड्स? एनी कंफ्यूजन? या इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। ग्रुप मतलब मैं एकदम क्लियर बोल दूंगा, इट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। उनको बैग में भर के रखा तो मतलब मोल होता है। इतने सारे एटम को, अरे मोल इज बिग ना, मोल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाउ यू कैन राइट कि मोल बड़ा या मॉलिक्यूल बड़ा? ऑफ कोर्स मोल इज लाइक ह्यूज क्राउड, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बैठे रहते हैं उसमें।
समझा? तो मोल इज ह्यूज नंबर और मॉलिक्यूल एक सिंगल बंदा। क्लियर? क्लियर? सो ओम, जस्ट इमेजिन तुमको सिंगल बंदा कह रहा है कि मैं अपने सैलरी का 10% तुमको दे दूंगा। ओके, और इमेजिन ओम, 125 करोड़ जनता कह रही है कि हम अपने सैलरी का 10% ओम को दे देंगे। सो ओम, कैसा लग रहा है आपको? मतलब डिफरेंस समझा? सिंगल इज लाइक जस्ट छोटा वैल्यू, बट एवोगाड्रो नंबर अगर आ जाएगा तो मतलब इट इज 1 मोल। क्लियर? क्लियर? ओके, आगे बढ़ू। सो यू हैव टू हेल्प मी नाउ, यू हैव टू हेल्प। This is, we are doing the second formula. One, ये मैंने सही लिखा है बच्चों? कम ऑन एवरीवन कूद पड़ो। Yeah, very good. 1 mole of CO2 is 44 gram. Therefore, 128 gram. Okay, you don't like this number? I can change it. You can put 79. You can put 1,200 gram. This can be any random weight, any given weight will be equal to n mole. Can you cross multiply, kids? All intelligent brains. Come on. Can you cross multiply? अथर्व, फर्स्ट फॉर्मूला मोल कैलकुलेट करना है अगर एटम्स के टर्म में रहा तो, एटम्स। ओके, एटॉमिक वेट, एटम। सेकेंड फॉर्मूला मोल कैलकुलेट करना है अगर 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 मॉलिक्यूल के टर्म्स में रहेगा। अथर्व, क्लियर बेटा? क्लियर? Okay, yeah, that's fine Gunjan, that's fine Tisha. So can you tell me, मतलब इसका कंक्लूजन क्या होगा? 128 gram upon 44 gram. Yeah, you are giving me absolutely correct answer. Very good. Kids, can you just help me in generalizing this formula? Help me in generalizing this formula. गिवन मास, या वेरी गुड। यानी मोल का दूसरा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास मतलब molecular weight. Yeah, given mass. Yeah. That answer is fine, kids. You people are doing wonderful. Believe me, this kind of response, if you people keep giving now, we are going to get a very good rank, number of ranks. Seriously, keep responding, keep interacting. So it can be any random given weight upon molecular weight. Okay. तिशा, जब वो लोग सिर्फ एटम की बात करेंगे ना बेटा, सिंगल एटम, ऑक्सीजन एटम का मोल निकालो, कार्बन एटम का मोल निकालो, सिर्फ एटम्स की बात करेंगे तो वी हैव टू put this formula, use this formula when there is an atom. See, in the question they will be guiding you whether to use atom, मतलब given data atom के बारे में दिया है या molecule के बारे में दिया है। ऋतुराज, come on. अच्छा, so in that case, see, there are many kids sitting, so it's better to interact, like chat से ज्यादा होता है, क्योंकि नहीं तो सभी वो थोड़ा chaos हो जाता है बच्चों। इसलिए जो भी डाउट हो, so I'm interacting with you, so don't worry. N is equal to given mass upon molar mass. Okay, अब पहला given weight upon given mass upon atomic mass. Okay,
शीशा, सेकंड फॉर्मूला मॉलिक्यूल के लिए है, फर्स्ट फॉर्मूला एटम के लिए है, सेकंड फॉर्मूला मॉलिक्यूल के लिए है, फर्स्ट फॉर्मूला एटम के लिए है. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन O and O2? Yeah, Dhananjay, that word is fine, beta. Yeah, yeah. So you people are trying to say कि ये बंदा बैचलर है and this guy is married. O2 is molecule, दो एटम का बना हुआ. This is single. This is single. तो मुझे अगर सिंगल एटम का मोल पूछा है, जो भी डेटा दिया है, दे आर सेइंग ऑक्सीजन एटम. तो एटम बोला तो भाई ये सिंगल है. सिंगल वालों के लिए कौन सा फॉर्मूला है? फर्स्ट वन. O2 मैरिड है, मैरिड. ओके, मैरिड है, मैरिड. सो उसके लिए सेकेंड फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. नाउ टेल मी, एक छोटा सा डाउट है मेरे मन में, O ज्यादा रिएक्टिव है या O2 ज्यादा? मतलब बैचलर ज्यादा रिएक्टिव है या मैरिड ज्यादा रिएक्टिव है? या O ज्यादा रिएक्टिव है ना? मतलब भाई O बंदा जो है वो फ्रेंड्स के साथ घूम सकता है, पर छुट्टियों पे जा सकता है. ओके, बट एक बार पेयरिंग हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, देन यू कैन नॉट. मतलब जहां तुमको जाना है O2 के फॉर्म में जाना है. इमेजिन कोई कोई गोवा जा रहा है और वो भी फ्रेंड्स को छोड़ के फैमिली के साथ जा रहा है, तो कितनी दुख की बात होगी. देखो, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब फ्रेंड्स के साथ जाने वाली जगह पे कोई फैमिली के साथ जाता है? नहीं ना. सो इसके लिए ये सब हानिकारक है फिलहाल. ये दिस इज बेस्ट, काफी रिएक्टिव है. ठीक है. या ओके, क्लियर. सो एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस समझ में आया. एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस समझ में. किसी ने डाउट रेज किया था कि बैचलर और मैरिड, आई मीन सॉरी, एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस क्या है? या एटम्स, देखो एटम्स क्यों मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं ये आगे ऑफ कोर्स, मतलब तुम ऐसे समझ लो कि केमिस्ट्री में तुमको हर एक चैप्टर 8 9 10 से शुरू करूंगा और इतने बेसिक प्लेटफॉर्म से सिखाऊंगा ना कि यू विल एक्चुअली वापस 8 9 10 का एग्जाम दोगे तो फर्स्ट आ जाओगे केमिस्ट्री में, इसकी गारंटी मेरी. सो रिलैक्स कि एटम क्यों मॉलिक्यूल बनता है या मॉलिक्यूल क्यों कम रिएक्टिव होता है, ये सब का जवाब मिलेगा. Okay, don't worry. And after like 6 7 months, you will be like, ha, Vaishnav, very good, very good. So Vaishnav is asking me a question, कि sir, can we call them as bachelor and married instead of using atom and molecule? Very good, बेटा. घर पे पढ़ रहे हो कि when two bachelor combine they form a married couple. मतलब घर वाले क्या मारे, पहले तुमको मारेंगे बाद में मुझे दौड़ाएंगे. when two bachelors combine they form molecule. मतलब they form मैरिड कपल. तो वो लोग मुझसे पूछेंगे भाई क्या मतलब, क्या समझा क्या रहे हो, मतलब बच्चे के इतना जल्दी ऐसे सब ज्ञान नहीं देना चाहिए. ओके, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ. तो इस प्रकार के डेफिनेशन तुम्हारे लिए भी हानिकारक है और मेरे लिए भी हानिकारक है, तो कृपया इस प्रकार के डेफिनेशन का इस्तेमाल ना करें. ठीक है, बुक में. और इमेजिन इफ यू राइट इन द कॉलेज एग्जाम दिस डेफिनेशन, तो टीचर को तो पक्का चक्कर आएगा भाई. ठीक है, वो तुमको नहीं, पहले मुझे ढूंढेंगे. किसने? मोलार मास, बुशरा. मोलार मास मीन्स 1 मोल का मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास. ओके, 1 मोल. मोलार मास इज मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास. ओके बुशरा, क्लियर बेटा. थर्ड फॉर्मूले पे आ जाओ. ऑल न्यू किड्स, ऑल न्यू किड्स, ऑल न्यू किड्स, समझ में आ रहा है बच्चों? कमॉन कमॉन, समझ में आ रहा है? ऑल न्यू किड्स, ऑल न्यू किड्स. ओके ओके, थर्ड केस, थर्ड केस, थर्ड केस. Okay. Third formula. Now you can basically help me. If Avogadro number of atoms, we are now heading towards third formula. Third formula. So if 6.022 10 raised to 23 atoms equal to 1 mole, therefore 6.022
10 raised to 24 atoms is equal to how many moles? Siddesh, absolutely correct beta, absolutely correct. ठीक है, yeah, 10 moles. Very good, very good. People are giving me the answer. People are giving me the answer. Very good. It is 10 mole. Cross multiply. Yes, Anika. Okay, okay. I'll answer that. Beta. I'll answer that. Wow, wow, wow. Very good. Kids, all intelligent kids. They are. मतलब what a response. I'm seriously very much happy. Okay, tell me one thing. Can you generalize the formula, kids, for me? The way we have generalized this one, this one. Can you put a third one? आदित्य, you understood this much? आदित्य, इतने सारे एटम्स मिलके अगर एक मोल बनाते हैं, तो इफ आई गिव यू दिस मेनी एटम्स, तो उनका मोल्स कितना होगा? इट्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आदित्य, क्रॉस मल्टीप्लाई, यश क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका क्या आएगा? अच्छा, शुड आई गिव यू अ बेटर वन? मैं इसका आंसर तुमको 10 आया, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, लेट्स से 10 raised to 23 atoms मतलब कितने मोल्स? हाँ, दैट आई चेंज दैट नंबर, 10 मोल्स था, अभी दूसरा नंबर, दैट्स करेक्ट। ओके, सो क्रॉस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आदित्य कैन यू हेल्प मी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग? आदित्य ठाकुर, श्रद्धा, डिड यू डिवाइड इट प्रॉपरली बेटा? श्रद्धा, so it will be, n will be equal to 10 raised to 23 upon 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so 10 raised to 23, 10 raised to 23, ये आ जाएगा 1 upon 6.022. Okay, can you kids generalize the formula for me? Third one, come on, all kids, come on. Third one, all kids, come on. Third one. Unnati, not mass, bachcha, not mass, beta. Unnati, not mass, na beta. This is not in terms of mass. Yeah. क्या बात है? Everybody is giving me correct answer. क्या बात है? So n will be given number of atoms or molecule, कोई भी हो सकता है, upon Avogadro number of atoms or molecules. Kids, you understood this? एवोगाड्रो नंबर, अगर उन्होंने एटम्स पूछा तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल दिया होगा, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी दे सकते हैं। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ऑल डियर किड्स, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? बट चलो, बिलीव मी, इट हैपेंस, यू नो, जनरली ये चैप्टर कैसा होता है, शुरू होता है तो उनको दिक्कत होती है, बट द वे यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड। और अगर अपना ऐसा ही कॉम्बिनेशन चलता रहा, यू विल बी डेफिनेटली गिविंग अ रैंक। सो वट एवर इज योर ड्रीम, यू विल अचीव इट। ओके, अब रही बात बुक की, सी नाउ यू पीपल आर आई थिंक AS A2 लेवल, yes, you people are which board? CBSE. Okay, so first book which you should have with you is NCERT textbook, your CBSE textbook of chemistry. Okay, जो भी, whichever board you are, irrespective to that, whichever board you are, irrespective to that, you have to take NCERT textbook, हमें read करना है। ओके, रीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरा कंपेटिटिव के एंगल से। तो मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा, सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड, सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां से शुरू करना है। ओके, सेकंड बुक विच यू शुड हैव is
एररलेस। अभी हमें वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एररलेस तुम्हें परचेज करना होगा। मॉड्यूल वी विल बी गिविंग यू। मॉड्यूल के क्वेश्चंस, मास्टर क्लास मॉड्यूल के क्वेश्चंस आर सिंपली ऑसम। वो इतने सारे क्वेश्चंस दिए ना कि वो करते करते तुम्हारा सब्जेक्ट टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। दिस इज फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। एररलेस जेई मेंस एडवांस का एक कॉम्बिनेशन वाला बुक आता है और दूसरा कॉम्बिनेशन है नीट वाले बच्चों के लिए। सो देर आर टू डिफरेंट, सो यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कौन सा बुक लेना है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। ओके, जो सीईटी वाले होंगे ना, सीईटी वाले जो लोग सिर्फ सीईटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अपना मॉड्यूल तो सॉल्व करना ही है, मास्टर क्लास मॉड्यूल। उनके लिए दे कैन बाय अ टारगेट पब्लिकेशन का सीईटी बुक और मार्वल पब्लिकेशन का। दिस इज ईदर और, ईदर और। ओके, ओम फॉर स्टेट बोर्ड तो हमें अपना कॉलेज टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटा। स्टेट बोर्ड हमें कॉलेज टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा। या स्टेट बोर्ड वालों को, जब तुम्हारा स्टेट बोर्ड का देखो, मैं एक ना कम्पिटिटिव के एंगल से दे रहा हूँ। तुम स्टेट बोर्ड वाला बच्चा है या आईसीएससी वाला या सीबीएसई वाला है, जब अगर इफ यू आर एसोसिएटेड विथ लेट्स से एसएससी बोर्ड, तो उनका जो यूनिट टेस्ट होगा, जो पीरियोडिक टेस्ट होता है ना, उसमें तो तुमको टेक्स्ट बुक का ही पढ़ना है। लेकिन जब तुम कोई भी चैप्टर कम्पिटिटिव एग्जाम के एंगल से पढ़ रहे हो ना, तो यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, देन डू एररलेस, अपना मॉड्यूल करो। ओके, और क्वेश्चन पेपर्स जो मिलेगा वो वहां से सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? या ओके, सो ये सीक्वेंस में, अभी सीक्वेंस में धीरे धीरे समझाऊंगा। एनसीईआरटी इज नो 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 क्वेश्चन आंसर योर, इफ यू आर फ्रॉम एचएस आई मीन स्टेट बोर्ड, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम के लिए तुमको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये मैं पूरा बंडल जो मैंने दिया है, इट इज फोकसिंग अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, और मैं धीरे धीरे गाइड करूंगा कि इनको पढ़ना कैसे है, कौन से पेज, मैं पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर सब बताऊंगा। ओके, सिद्धेश, इफ यू हैव प्रदीप और ओपी टंडन, ऑप्ट फॉर, आई मीन प्रदीप इज बेटर। ओके, उसमें थ्योरी भी दिया है और एमसीक्यू भी दिया है। इवन एररलेस इज द सेम, थ्योरी भी दिया है और एमसीक्यू भी दिया है। इवन प्रदीप इज गुड। प्रदीप क्या है, प्रदीप वाला जो बुक जिनके पास कहीं से अवेलेबल हो सकता है, उसमें एनसीईआरटी कॉर्नर वगैरह, जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं ना, जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देंगे, वो लोगों को भी वहां से पढ़ना पड़ता है। ओके, एचसी वर्मा फिजिक्स के लिए है भाई। ओके, और दूसरा एमएस चौहान ऑर्गेनिक के लिए है, उसके बारे में अभी चिंता ना करें, वो मैं बताऊंगा कब यूज करना है। ओके, धनंजय, फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट किरण मैम और हेमांगी मैम। ओके, वंस यू विल टेक द एडमिशन, सो उसके बाद पूरा का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा अपने साथ। आई एम टेलिंग दैट, क्या क्या लिखा था, पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री इज सेम, बट पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री इज सेम, गिव JES या जेई एडवांस। ओम, दैट्स करेक्ट, विच एवर बोर्ड यू आर, जेई मेंस एडवांस के लिए ये कॉमन है। तुम अब सीईटी देने वाला है तो ये छोड़ के सिर्फ ये रिफर करना है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ठीक है गाइस? या दे आर यूजफुल। सी, बुक्स बहुत सारे मार्केट में बच्चों, मैं इतने बुक्स दे सकता हूँ कि बुक्स खत्म नहीं होगा और तुम्हारा 12th खत्म हो जाएगा। ओके, या विजय, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ओके, बाकी बुक्स का मैं गाइड करूंगा तुमको। अभी के लिए बच्चों, पहला मंत्रा सक्सेस का ये है, तुमको पहला जो फुटस्टेप लेना है वो ये कि कंसेप्ट कीप रिवाइजिंग। व्हेन वी मीट नेक्स्ट, तुम कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करके रखो। 11th का बोथ द पार्ट तुमको लेना है, सेकंड पार्ट बाद में यूज होगा एनसीईआरटी का। ऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक, ये मैं धीरे आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन सी किताबें लेनी है। ठीक है गाइस? या ठीक है गाइस, ओके, सी यू, बाय, टेक केयर। CET only state board, so it is simple. Okay,
चलो, बाय किड्स, बाय, आई हैव वन मोर सेशन, बाय, टेक केयर, बाय।